Welcome friends in today's session related with business regulatory framework subject. Today we are going to start a new unit which is intellectual property rights. Let's have its question on the screen. What we are going to cover in today's session is the base of the unit, that is what do you mean by intellectual property. We will try to understand the concept of intellectual property and what are its features, or we can say what are its characteristics. So let's have it's an idea. Let's have the introduction. Intellectual properties are different from other forms of property, and the most noticeable difference between intellectual property and other property is that intellectual property is intangible, which cannot be identified by its own physical parameters. Now, what types of properties are available, or what are the types of property? Basically, there are, if we talk about properties, types of properties, there are various types of properties are there. But basically, as per this concept, we can bifurcate two types of property, that is tangible property and intangible property. Now, intellectual properties are they come under which category, sir? They come under intangible category of properties. So they are different from tangible properties. Now, what is intangible properties, sir? We have an idea about intangible properties as we are a commerce student. We have an idea about the types of property also. We have learned these things in accountancy in the matter of balance sheet under fixed assets as per schedule 3 of companies act 2013. We have learned vertical balance sheet structure also, and in that, in asset side, the first asset is fixed asset, and under that there are two types of assets, tangible and intangible assets. Now, intangible assets in simple version, it is nothing but which are not visible, which cannot be seen, which cannot be touched. If I give you example, such type of properties are goodwill, trademark, patent, copyright. These are considered as intellectual properties. Intellectual property rights are the legal rights which covers privileges given to individuals who are the owners and inventors of a work and have created something with their intellectual creativity. Now you will get right, आपको अधिकार मिलेगा, you will get right. Right related to what, sir? Right related to intellectual property. आप intellectual property अगर आपने कोई create की है, उसका creation आपने किया है, तो उसके प्रति आपको अधिकार मिलेगा, और ये अधिकार आपका कानूनी अधिकार होगा. लीगल राइट्स, यू विल गेट लीगल राइट्स, यू विल गेट प्रोटेक्शन अबाउट योर ओन ओरिजिनल वर्क. आपने जो भी ओरिजिनल वर्क किया है, काम किया है, एज एन इन्वेंटर, एज एन ओनर, वो चीज़ आपकी होगी, उस पर आपका अधिकार होगा, क्योंकि उसके रचयिता आप है, वो वर्क आपने क्रिएट किया, यू आर द क्रिएटर. अब नॉर्मली किस प्रकार के आपको इसमें प्रोटेक्शन मिलते हैं, सर? पर्सन्स रिलेटेड टू द एरिया सच एज म्यूजिक. आपने कुछ म्यूजिक कंपोज किया हो, यहाँ किसी इंसान ने कुछ इन्वेंशन किया हो, किसी ने म्यूजिक कंपोज किया हो, लिरिक्स लिखे हो, इन्वेंशन किया हो, कोई लिटरेचर वर्क किया हो, जैसे बुक्स लिखने, कोई बुक लिखी हो, बुक रिलेटेड विद नॉवेल्स हो सकती है, कोई शॉर्ट स्टोरी की लिखी हो, कोई पोएम की लिखी हो, वगैरह वगैरह. कैन बी प्रोवाइडेड सच राइट्स विच कैन बी यूज्ड इन द बिजनेस प्रैक्टिस बाय देम. इसके लिए आपको आपका जो भी ओरिजिनल वर्क है, यू कैन प्रोटेक्ट योर ओरिजिनल वर्क रिलेटेड विद म्यूजिक, रिलेटेड विद इन्वेंशन, रिलेटेड विद लिटरेचर और एनी अदर फील्ड्स. Now, what are the list of activities that are covered under IPR? IPR का मतलब है Intellectual Property Rights by WIPO. WIPO means World Intellectual Property Organization. अब हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं. कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती है आईपीआर के अंदर वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे? तो लिस्ट देख लेते हैं इसकी.
नंबर 1, व्हाट इज कवर्ड एज आईपीआर एक्टिविटीज? तो पहला है साइंटिफिक डिस्कवरीज आर कवर्ड अंडर दैट। नेक्स्ट इज इन इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल डिजाइंस होती हो सकती है सर इसके अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन, आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक वर्क्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, कमर्शियल नेम्स एंड डेजिग्नेशंस हो सकते हैं, ह्यूमन इन्वेंशन हो सकता है, in all areas, in all spheres, in all fields, performance of performing artist and broadcast हो सकता है, या अन्य प्रकार के अधिकार हो सकते हैं जो बौद्धिक प्रवृत्तियों से जुड़े हुए होते हैं, ऑल अदर राइट्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? So according to WIPO, WIPO means World Intellectual Property Organization. What does it mean? Intellectual property refers to the creation of the human intellectual such as inventions, literary and artistic work, and symbols, names and image used in commerce. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है सर? ये एक इंसान के ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, एक इंसान के जो माइंड में जो आ रहा है, और माइंड में जो आ रहा है उसके बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे उसने कुछ क्रिएट किया है। आपके माइंड में कोई विचार चल रहा है और विचार जो आइडिया आपके माइंड में आया है सर, आपने उसके बेसिस पे, आपके नॉलेज और आइडिया के बेसिस पे आपने कुछ क्रिएट कर दिया है। और वो क्रिएशन किस स्वरूप के हो सकते हैं? कुछ नया आपने खोजा है तो वो इन्वेंशन हो जाएगा, कोई खोज की है आपने, कोई लिटरेरी वर्क हो सकता है आपका, लिटरेरी यानी कुछ लिखा पढ़ी की हो आपने, अपने शब्दों में कुछ लिखा हो, बुक्स लिखी हो, कोई रिसर्च वर्क किया हो, एनालिसिस का काम किया हो, कुछ आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है। आर्टिस्टिक वर्क में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, आपने कुछ म्यूजिक कंपोज किया हो, आर्ट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है, म्यूजिक कंपोज किया हो, कोई लिरिक्स लिखे हो आपने बहुत अच्छे से, फिर हो सकता है आप मूर्तिकार हो, आपने कुछ मूर्ति वगैरह बनाई हो, आर्टिस्टिक काम किया हो शॉर्ट में। सिंबल्स, नेम्स और इमेजेस भी इसमें कवर हो जाते हैं। इन शॉर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है सर? इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। आपके जो विचार है, आपका जो नॉलेज है, आपके माइंड में जो चल रहा है सर, उसके बेसिस पे आपने कुछ नया किया है, कोई इन्वेंशन किया है, कोई नया काम किया है सर। हो सकता है लिटरेरी वर्क हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, या कोई आपने नेम सजेस्ट किया हो कंपनी के, कोई ब्रांड नेम दिया हो आपने, तो वो फेमस हो जाता है सर। इट रेफर्स टू द नॉलेज। इसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का? आपके ज्ञान से। कुछ नया किया आपने, इनोवेशन, कुछ खोज की हो आपने, इन्वेंशन, सृजनात्मकता हो आप में, क्रिएटिविटी, आपने कोई संशोधन किया हो, रिसर्च, टोटली न्यू वर्क, आपने कुछ कुछ नया ढूंढा, कुछ नया किया, आपके विचार हो सकते हैं, आइडियाज एक्सेट्रा। इन सभी चीजों का समावेश हो जाता है सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मीनिंग के अंदर। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, जो ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। स्टेट द फीचर्स और वी कैन से स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपने ये 5 मैंने आपके लिए रेडी किए और 5 आपने लिख देने हैं। इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हमने चर्चा की। ये जो है बौद्धिक संपत्ति जो है सर, वो क्या है सर? व्यक्ति के माइंड में जो सृजनात्मकता है उसको हम कह सकते हैं सर कि वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपकी जो विचार है, आपकी जो विचारधारा है, आपने जो इनोवेशंस है, कुछ आप नया करने चाहते हो, तो वो सब किन चीज़ों का इन सब चीज़ों से क्या जुड़ा हुआ है सर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है सर। ये एक प्रॉपर्टी है। एक तो है ह्यूमन माइंड में जो चल रहा है उसकी क्रिएशन है, एक तरीके से क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दूसरा, ये खुद एक प्रॉपर्टी है, किस स्वरूप की प्रॉपर्टी है? अभी हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, इन द नेचर ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ये एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। असाइनेबल है। असाइनेबल का मतलब क्या है सर? इट इज अ फॉर्म ऑफ राइट्स विच कैन बी असाइंड।
ये एक अधिकार है और ये अधिकार को हम असाइन कर सकते हैं। असाइन कर सकते का मीनिंग क्या होता है सर? इट कैन बी सोल्ड, it can be purchased, it can be hired, it can be licensed or else something or. For example लेते हैं, by way of copyright, a producer of a movie can allow someone else to use his or her creation. एक मूवी के जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर यानी कौन होते हैं पहले वो समझ में आना चाहिए, वो बंदा जो पैसे लगा रहा है फिल्म के अंदर उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्या कर सकते हैं सर? उसका उस फिल्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, यानी कॉपीराइट अपने नाम पे करवा लेंगे, क्योंकि उसके रचयिता हुआ है, क्रिएशन उसका है, पैसे उसके लगे हुए हैं अंदर से। तो वो चीज उसकी है और कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता है, ये उसकी क्रिएशन है। तो इसको इस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है प्रोड्यूसर को। एक्सक्लूसिव राइट, the owner of intellectual property has absolute and exclusive right over it. ये चीज आपकी है, आपने क्रिएट की है, जो भी चीज आपने क्रिएट की उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। यू हैव एब्सोल्यूट मीन्स फुल एंड एक्सक्लूसिव राइट, और कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता है। इट मीन्स दैट parties other than the owner do not have the right to use the intellectual property without his consent. जब तक आप सामने वाले को परमिशन नहीं देते, जब तक सामने वाले ने आपसे परमिशन नहीं लिए उसको यूज करने की, वो नहीं यूज कर सकता है। आपसे परमिशन लेके वो चीज यूज की जा सकती है। जैसे आपने कोई कॉपीराइट करवाया, आपने प्रोड्यूसर, मूवी के प्रोड्यूसर है, आपने उसको कॉपीराइट करवा दिया है, तो जब तक आप सामने वाले को परमिशन नहीं देंगे वो आपकी चीज यूज नहीं कर सकता। एक गाना भी यूज नहीं कर सकता उस फिल्म से। ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर फर्स्ट। और सबसे अंत में आएगा इट इज अ लीगल एंड वैलिड राइट। सो ये 5 आपने फीचर्स लिख देने। ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा जाता है, स्टेट द फीचर्स और स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने इतनी डिटेल